Now, our second operator is our relational operator. Second is our relational operator. Okay. Now, what is the relational operator? Suppose there is a two person. If they are finding the relation about their height, suppose कोई भी दो पर्सन है, वो दोनों अपनी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं. So one will say कि मेरी हाइट उससे ज़्यादा है ना? So suppose there is a in the same way we are having the two variables. Suppose A 5, B 7. We are having the two integer type of variables and they are comparing themselves. कैसे compare करेंगे? A is greater than B, A is less than B, A is greater than or equals to B, A is less than or equals to B, A is equals to B, and A is not equals to B. So these are the symbols or these are the operators. These are called our relational operator because they are giving the relation between the two variables A and B. A और B के बारे में बीच में relation show कर रहे हैं. That's why it is called the relational operator. Now the result of this relational operator will always be in a Boolean format. What is the Boolean format we have discussed? It only gives the answer true or false. So your answer of relational operator will be exactly given in a true or false. It may be true or it may be false. So let's discuss about it. So A is greater than B. 5 is greater than 7. Is it true or false? It is wrong now, so it is a false. Second, A is less than B. 5 is less than 7. It is true. A is greater than or equals to B. It is asking A हमारा या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो B के. तो क्या A हमारे यहाँ पे बड़ा है? नहीं है. क्या बराबर है? नहीं है. So 5 is greater or equals to 7? No. So your answer will be false. 5 is less than or equals to 7. 5 या तो छोटा हो या बराबर हो इसके 7 के. So no. It is true ना because it is less than. So A is equals to B. A हमारा B के equal है. No, it is not. 5 is not equals to 7. So your answer is false. Now they are asking what the 5 is not equals to 7. They are telling 5 is not equals to 7. This is true ना क्योंकि 5 को बोल रहे हैं कंपाइलर साहब से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं 5 7 के बराबर नहीं है 5 7 के इक्वल नहीं है तो ये बात सही है ना क्योंकि 5 7 के इक्वल रियली में नहीं है. सो योर आंसर विल बी हियर इज ट्रू क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है कि आपका 5 7 के इक्वल नहीं है. ओके सो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर. ठीक कौन कौन से थे हमारे पास? ग्रेटर देन, this is less than, this is greater than or equals to, this is greater than or equals to, this is less than or equals to, this is equal operator equals, this is not equal. Okay, so these are the name. First is the greater, less than, greater or equals to, less than or equals to, equals to and not equals to. Okay, so this is our relational operator. Now next is our assignment operator. So what is the assignment operator? We had already discussed about the assignment operator but we don't know that it is assignment operator. Third is our assignment operator. So what is the assignment operator? Suppose if I write int A equals to 7. Okay, so remember this thing and the 7 is the value of 7 is given to variable A. So what does it also mean? That I am assigning a value 7 to a variable A. Here 7 is assigned to a variable. I will not write here A because the name of the variable is also A. To a A. हमने यहाँ पर A वेरिएबल को 7 वैल्यू असाइन कर दी. अब किसके थ्रू असाइन किए? बाय यूजिंग दिस इक्वल ऑपरेटर. ये जो आपका इक्वल है इसके थ्रू किए. सो दिस इज कॉल्ड अवर असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, इन द सेम वे इफ आई राइट फ्लोट f equals to 2.9, it is our assignment operator. If anything I can write but the equal sign is there, then it is called a assignment operator. So there is a difference
one question arises here, the difference between equals and double equal. ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इक्वल्स एंड डबल इक्वल्स में फिर डिफरेंस क्या है? देखिए, जो इक्वल सिंबल है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो डबल इक्वल है वो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू देता है, और जो आपका इक्वल है दैट इज ओनली यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू ऑफ एनी टाइप। अगर ये आपकी इंटीजर है तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू देगा, फ्लोट है फ्लोट टाइप की वैल्यू देगा। सो इट इज नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर डेटा टाइप ना, इट इज ओनली provide the it only assigns the value. Okay, in this assignment operator is completed. Now the next part is about logical operator. Next is about fourth one is about logical operator. So what is the logical operator? The logical operator, the first thing you will remember, the result or the output of this operator will always be in a Boolean form, that is in a true or false. ओके, आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ से लॉजिकल ऑपरेटर से वो हमेशा आपका किस में आएगा? ट्रू या फॉल्स में ही आएगा, दैट इज द बूलियन। ना लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे जो इनपुट होते हैं, द इनपुट वी कैन से द वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू होगी वो भी आपकी जिसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे दैट इज ऑल्सो इन अ बूलियन फॉर्म। दैट इज इफ आई से ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, इफ आई से ए एंड बी. So in this way we will discuss here A and B is also will come in a will also be a boolean. यहाँ पर आपका A और B भी बेटा क्या क्या होगा? आपका boolean ही होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं। So first we will discuss about the types of operator, types of logical operator, then it will be more clear. So first part is our AND operator. First part is our AND operator. एंड का सिंबल क्या होगा आपका? ये आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस सिंबल को यूज करोगे, ना कि इसको। इसको आपको सिर्फ नेम है, इट इज अ एंड ऑपरेटर, बट द सिंबल विल बी यूज्ड हियर विद नॉट, इट्स एम्परसेंड साइन, डबल वन, दो बार लिखेंगे। ठीक है, चलिए नाउ वी विल गेट द आंसर, हाउ वी विल डू। सो सपोज आई टेकन द बूलियन a equals to true, and if I say boolean f equals to false. Okay, now we have to discuss about the AND. So what is the A and F? That means आपका अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें, so what is the true and false? Okay, this question arises from here. So to solve this question, let's discuss about the truth table. The truth table is nothing just a combination of these inputs. ठीक है, हम इनपुट की बात करते हैं। देखिए पहले मैं इसके आपके टाइप बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट इज द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, द सिंबल विल बी एंड। सेकंड इज द लॉजिकल और ऑपरेटर, सिंबल इज दिस। थर्ड इज द लॉजिकल नॉट, सो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज दिस। ओके, सो दीज आर अवर three types of operator, that is the three logical operator. So I will say the ABC, logical and, logical or, and logical not. Now we will discuss about the truth table. Only this is the, what is this? This is a combination. So suppose I taken the two variable a and b. A and b can also come in a capital. Remember this. Okay. But the difference is small a and capital A makes a difference because Java is our case sensitive language. What does it mean by case sensitive? अगर आपने स्मॉल a लिखा है और आपने सॉरी अगर आपने कैपिटल A लिखा है और आपने स्मॉल a लिखा है, इन दोनों में आपका डिफरेंस होता है। ये मैं समझ रहा कि दोनों सेम ही है, चलो कोई बात नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये होता है आपका केस सेंसिटिव। देखिए मैं बात करता हूँ ए और बी की, आपका क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। दोनों ट्रू हो जाए आपके इनपुट, जो आपका आंसर वैल्यू लोगे आप, जैसे आपने लिया a एंड b, तो आपके a भी ट्रू हो b भी ट्रू हो, या पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू, या फिर हमारे दोनों फॉल्स हो, एक तो कंडीशन बनेगी। इफ आई पुट a एंड b, इफ आई पुट a एंड b, so remember that true and true always gives you the true, rest of them will be false. Okay, and in the a or b, true and true will be true, true and true will be true,
true or true, false is false. So from this it may be clear that both the input is true, then only your answer will be true. And if the both input are the false, then the or is false. Rest of them or is having true and rest of them end is having false. क्लियर रहेगा ये वाला? हमारा जो एंड है वो सिर्फ हमारा एक ही कंडीशन में ट्रू होगा जब हमारे पास दोनों इनपुट ट्रू होंगे, ठीक है, बाकी में सब में फॉल्स रहेगा, ठीक है, और हमारा और सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स रहेगा जब दोनों फॉल्स रहेंगे, बाकी सब में वो ट्रू ट्रू रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, सपोज करिए आपके एग्जाम में कोई भी दो क्वेश्चन आए, ठीक है, जरा अच्छे से देखिएगा। सपोज आपके कोई भी दो क्वेश्चन आए, सपोज क्वेश्चन 1 राइट शॉर्ट नोट, एक आपका है राइट अ शॉर्ट नोट और दूसरा है राइट अ पैराग्राफ, राइट अ पैराग्राफ। और ये चीज मैंने एक बार और लिख दी, राइट अ शॉर्ट नोट एंड राइट अ पैराग्राफ, ओके। बट आई पुट द सिंबल हियर एंड, मैंने यहाँ पे एक एंड का सिंबल बना दिया, मैंने यहाँ पे अपना और का सिंबल बना दिया, ठीक है ना। इन योर एग्जाम की बात कर रहे हैं तो in your exam to get the full marks in the first question, to get the full marks from the first question number, that is the end, short note and the paragraph, आपको full marks लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आपको full marks लेने के लिए यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ना। दैट मीन्स अगर मैं अटेम्प्ट करने से ट्रू से रिप्रेजेंट करता हूँ अटेम्प्ट करने को, अगर मैं ट्रू को मान लेता हूँ कि अटेम्प्ट क्वेश्चन को मैंने ट्रू मान लिया है एंड फॉल्स को मैंने मान लिया नॉट अटेम्प्ट, ओके सपोज। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन किया है सपोज ट्रू और पैराग्राफ भी आपने किया है, तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। या आपको फुल मार्क्स क्या है? ट्रू है आपका, जो आपके फुल मार्क्स है वो क्या है? ट्रू है। अगर आपने शॉर्ट नोट भी किया है और आपने पैराग्राफ भी किया है, तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज़ इट इज गिवन द एंड। एंड मींस कि बोथ यू हैव टू डू, देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क्स। सपोज इन्होंने लिखा एफ, दैट मींस उन्होंने शॉर्ट नोट तो कर दिया लेकिन पैराग्राफ नहीं किया, सो इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द चॉइस, इट इज टेलिंग दैट यू हैव टू डू बोथ द क्वेश्चन, देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क्स। बट ट्रू या फॉल्स, सेकंड क्वेश्चन नहीं है, योर आंसर विल बी इन अ फॉल्स, ओके। पहला इन्होंने नहीं किया, दूसरा का कर दिया, इट इज फॉल्स। फर्स्ट किया, सेकंड भी नहीं किया, फॉल्स, ठीक है। शॉर्ट नोट में क्या लिखा है? और, यहाँ पर क्या लिखा आपका? और। व्हाट डज इट और मींस? और मींस अ चॉइस, हाँ, आइदर यू हैव टू डू द क्वेश्चन शॉर्ट नोट और यू हैव टू डू द पैराग्राफ। आप जो भी देंगे, सॉरी आई विल पुट द और साइन, सो आप जो भी करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो सपोज आई हैड डन द शॉर्ट नोट आल्सो, पैराग्राफ आल्सो, देन आल्सो आई विल गेट द फुल मार्क्स। if I done the short note, if I done the short note but I not done the this one paragraph, then I also will get the true, because I get the full marks, because we have to do only one question. I attempt the first question, not done the second, then also I will get the full marks. Or in the another case, I had done not the first question not done, but second question is done, then also I will get the full marks. But if you are not doing the any of them, आपने दोनों में से एक भी नहीं किया तो थोड़े आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, then you will get the 0 marks, that is the false. Now remember this thing, and आपका चॉइस नहीं देता है, एंड में you have to attempt both, that is both should be true for your full condition to be true. आपकी पूरी कंडीशन ट्रू होने के लिए आपकी दोनों वेरिएबल्स, आपकी दोनों इनपुट आपके ट्रू होने चाहिए। बट फॉर द और ओनली वन इनपुट विल बी ट्रू, देन योर रिजल्ट विल आल्सो बी ट्रू, ओके, एक ही ट्रू होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द नॉट। व्हाट इज द नॉट? नॉट रिवर्स योर इनपुट, दैट इज सपोज इफ आई राइट नॉट ट्रू, व्हाट डज इट मीन इन हिंदी? इफ आई से इट इज ट्रू नहीं है, अगर ट्रू नहीं है तो क्या है वो फॉल्स है, करेक्ट। अगर वो मैं बोलूँ नॉट फॉल्स, वो फॉल्स नहीं है तो वो क्या है? ट्रू। सो दिस इज अ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। डन।